7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सर 14, आई थिंक एच सेक्शन 19, से कोई नहीं है, 20, आप ये को November, ब्लॉक कर दो सर, सही भाई रहेगा। पुनीत ये जो भी है डिस्टर्ब कर रहे प्लीज हैं यार, क्लास, पूरी हमारा क्लास को। सिलेबस बहुत 20, तेज चल रहा है, प्लीज यार डिस्टर्ब ना करो प्लीज भाई। नहीं 20, प्लीज पुनीत जो भी है आप सर, यार, इसे कोई भी ब्लॉक भाई कर दीजिए प्लीज सर। यार। नहीं, ये लिंक शेयर 30, आप कहीं बाहर तो नहीं कर रहे हैं आपके आउटसाइड दी 34, क्लास? सर इसको रिमूव कर दीजिए सर आप। चक्कर ये है कि इसमें देखो ऐसा है ना, डोंट मतलब ट्राई टू मतलब whosoever is trying to do this, देखो मैं ना कि आई एम ignoring this because I do not want at the 11th hour someone should be put in the pain. Hmm? Otherwise I have a different means to recover that. Who is basically sharing the information of, I know that certain students are sharing the link of this to the outside student and they are trying to interfere. This will be not tolerated, I tell you. This will absolutely not tolerated, and I know the means and mechanism. अगर आप ये जानिए कि इसी चीज को ट्रेस करने में लगा जाएगा कि ये पुनीत कुमार कौन है, ये एक दिन कोई और आया था, तो दैट्स क्वाइट इजी। उसमें 2-1 दिन टाइम लगेगा, विच आई डोंट वांट टू स्पॉयल, because my time is very important, at the same time your time is very important. तो whosoever is doing, और आपको पता है ये सारा आईपी एड्रेस एवरीथिंग इज ट्रेसेबल, और फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे दैट विल बी वेरी दैट विल बी रियली वेरी डिजास्टरस। आप समझिए इसकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटीज है, अभी आप इसको समझ नहीं रहे हैं कि किस लेवल पे जाएगी बात। ये फिर आप योर करियर विल बी एट स्टेक, it will be almost spoiled once a official complaint will be made, that too by the Delhi University Computer Center. So whosoever is trying to do, it will be very, I should say, this is the last warning, I tell you. I don't think I ignored the last instance, that doesn't mean I don't have a means and method to catch you. So therefore, whosoever is doing and whosoever is sharing the link outside, this link is only and only for the Law Center 1 section H and I. And if you are doing and sharing someone else or in any other manner, someone is trying to be entered from different ID. So what I will do tomorrow, see, I will only share the link from institutional ID. In that case, if you have an institutional ID, then you will be able to join, otherwise not. Now, the link which I am sharing since last 2-3 classes, that is of a general nature. But if I will share only the institutional ID link, then only the student having an institutional email ID issued by the Law Center 1 will be able to join. In that case, it will be a trouble for so many students. So you people have to decide whether you want such kind of trouble, and that ultimately you will be in the trouble. This online class I am taking not up because of my choice, because of your choice. Anyway, so coming back to the discussion. We are starting this discussion. Topic 9, that is Kosai contract, or a contract I discussed yesterday that because of certain reasons
these contracts or obligations, they are not full-fledged contract, but because they have certain technical things missing, so therefore they cannot call technically as a contract. However, these obligations are such that at least they require certain legal protection. And for lawful object and consideration, and should not be expressly declared void. So basically these obligations, some point is missing into them. अब ऐसा होगा कि पार्टी या तो कॉम्पिटेंट नहीं है, जैसे माइनर का केस आप ले लो, तो बट नॉट इन ऑल केसेस, बट मान लो जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि माइनर को, चलो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता। बट अब मान लो कोई माइनर ऐसा है जिसको कुछ नेसेसिटीज है लाइफ की, नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ, ठीक है, तो एग्रीमेंट तो इंटर कर नहीं सकता, और कोई बिना एग्रीमेंट के उसको उसका टेक केयर करेगा नहीं। उसको श्योरिटी चाहिए कि भाई मैं चलो माइनर की देख रेख कर लेता हूं, बट मेरे बदले में ये श्योरिटी हो कि भाई जब ये बड़े होंगे तो पढ़ाई करेंगे, मेरा पैसा रुपया वापस कर देंगे। तो अब टेक्निकलिटी ये है कि माइनर अपने कॉन्ट्रैक्ट एडमिट नहीं कर सकता, उसके बिहाफ पे उसके नो वन इज देयर टू गिव अ गारंटी। तो फिर सच काइंड ऑफ केसेज वी विल सी, जब हम लोग स्पेसिफिक केसेस डिस्कस करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट एट द सेम टाइम उसका प्रोटेक्शन जरूरी है बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी, बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो ऐसे जो ऑब्लिगेशंस हैं जिनको ऐसे ऑब्लिगेशन जिनके लिए एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी कैन नॉट बी इंटर्ड, but they are required to be protected and their interest is required to be recognized, तो उनके लिए किया जाए। तो उनके लिए एक चीज डेवलप की गई, जैसे आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टेक्निकली फेडरल नहीं कहा जा सकता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप टेस्ट करेंगे फेडरलिज्म के, वर्ल्ड वाइड जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन है या तो वो फेडरल होते हैं या तो यूनिटरी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कैसी गवर्नेंस है। तो हमारे यहाँ चूंकि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा यूएस में भी है, बट जहां जहां 2 टायर मतलब फेडरलिज्म जहां जहां होता है उसका मतलब होता है कि कंप्लीट सेपरेशन होता है पावर का, डोमेन डिफाइड है कि किस किस डोमेन में स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर है, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, और यूनियन के डोमेन में, यूनियन के जुरिडिक्शन में जहां जहां उसको जो जो पावर है उसमें स्टेट, मतलब वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, वाटर टाइट बाइफर्केशन होता है, फेडरल कहते हैं। बट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसा नहीं है। अभी आप आने वाले क्लास में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर बताएंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, or the kind of scheme Indian constitution prescribes that doesn't follow strictly either the federal system or the unitary system. तो ये है कुछ बीच का है, something mid of that, completely federal नहीं है लेकिन फेडरल जैसा ही है। आप समझिए, कोई चीज एग्जैक्टली वो नहीं होती है बट उस जैसी ही होती है, तो उसको कोसाई कहा था, लाइक दैट कोसाई। तो ऐसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ये जो ऑब्लिगेशन है 68 से 72 तक कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बट दे आर ऑलमोस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर कॉल्ड कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली दीज ऑब्लिगेशंस आर
in the Indian Constitution, from section 68 to the 72 आप चैप्टर 5 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेक्शन 68 से 72 तक, तो दीज एप्लीकेशंस आर नोन एज कोसाई कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लिखिए व्हाट इज कोसाई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सेक्शन 68 टू 72 चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, इनको लाइक कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ में कहा जाता है। और जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो राइट डाउन, कोसाई कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू सेक्शन 68 टू 72 आर इज इक्वल टू चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्दर, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश लॉ का टर्म है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, तो वही सेम कॉन्सेप्ट जो इंडिया में है उसको कहा जाता है सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 5 की यही हेडिंग है ना। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज सेक्शन 68 टू 72। देखो वहां कुछ ऐसा लिखा है क्या? यस सर, यस सर, यस ऐसा ही लिखा है ना कि सर रिजेंबलिंग। देखो रिजेंबलिंग मतलब उस तरह से रिजेंबल होते हैं, बट एग्जैक्टली पूर्ण रूपेण वो है नहीं कॉन्ट्रैक्ट के जैसे है। तो इसीलिए इसको कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से, बेसिकली थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी भी समझते हैं। एक केस था मोजेस वर्सेस मैकफार्लॉन का, नोट डाउन, मोजेस वर्सेस मैकफार्लॉन। कल चूंकि सेक्शन आई के लोग जल्दी लेफ्ट कर गए थे, मैं एक बात कर रहा था अनजस्ट इनरिचमेंट की, तो ये बेसिकली इसी को कवर करने के लिए जो इसकी फिलॉसफी है, क्यों ये जरूरी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखा जाना। तो एक मोजेस वर्सेस मैकफार्लॉन का केस है 1760 का, मोजेस वर्सेस मैकफार्लॉन, मोजेस वर्सेस मैकफार्लॉन, MOSES वर्सेस मैक, MAC मैक, मैकडोनाल्ड वाला मैक, फरलॉन FERLAN और फरलैन जो भी पढ़ना चाहे, मोजेस वर्सेस मैकफार्लैन, मोजेस वर्सेस मैकफार्लैन। तो अनजस्ट इनरिचमेंट, अब इसमें आप ब्रैकेट में लिखो इस केस में अनजस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट। अब अनजस्ट इनरिचमेंट क्या है? बेसिकली अगर ये फिलॉसफी है इसकी कि अगर ये ना प्रोटेक्ट किया जाए तो ये इशू जाएंगे इसमें। तो व्हाट इज अनजस्ट इनरिचमेंट बेसिकली? What is unjust enrichment? So unjust enrichment means an enrichment for which someone is getting something for which the party is not entitled, basically. एक होता है जस्ट इनरिचमेंट, एक होता है अनजस्ट इनरिचमेंट। तो अनजस्ट इनरिचमेंट का ये मतलब हुआ कि द पार्टी So the unjust enrichment means not a just enrichment. Just enrichment मतलब जैसे किसी के पास किसी को कोई चीज बेनिफिट मिल रही है, प्रॉफिट मिल रही है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है, तब तो उसको जस्ट इनरिचमेंट कहेंगे। कोई इनरिच हो रहा है जस्टिफाइड तरीके से, जिस चीज के लिए वो डिप्राइव्ड था या जो उसका हक बनता है, राइट बनता है, इंटाइटलमेंट बनता है, वो उसको मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है कि जस्ट इनरिचमेंट। अब मान लो किसी को कोई ऐसी चीज मिल जा रही है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है, या बेसिकली एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये किसी और को मिलना चाहिए था, किसी और को मिल जा रहा है। सर एक बार फिर से बोलिएगा अनजस्ट इनरिचमेंट का। अरे समझा तो रहे भाई, समझो तो, इससे आसान क्या अनजस्ट इनरिचमेंट समझा जाता है, पहले आप समझने पे ध्यान दो। जस्ट और सुनाई दे रही कि नहीं आवाज? यस सर। हाँ तो आप यस सर, डिस्प्ले नहीं सर आपकी, सर आपकी डिस्प्ले नहीं सर आप विजिबल नहीं है सर। नहीं मैं विजिबल डेलिबरेटली नहीं हूँ, क्योंकि आप
वॉइस में क्लैरिटी है कि नहीं है ये बताओ। यस सर, क्लियर है माइक में यस क्लियर सर, वाइस क्लियर, वाइस ऑडिबल। हाँ, तो वॉइस ऑडिबल है ना। तो देखो क्या है कि सुनने में ध्यान दो, समझो उसको, उस चीज को थोड़ा आंख बंद करके जैसे भी समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। पॉइंट ये है कि अभी हम मोजेस वर्सेस मैकफार्लान में आएंगे, अनजस्ट इनरिचमेंट को वहां डिफाइन किया गया। बेसिकली जो मैं अभी बात आपको समझा रहा हूँ वही चीज है कि या ऐसा करो कि आप एक बार लिख लो, देन इट विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड मोजेस। तो अनजस्ट इनरिचमेंट दैट इज, मैंने ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट आपको साई कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। पहले आप ये लिखो, ऑब्जेक्ट आपको साई कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट इनरिचमेंट। So that is, अब है क्या unjust enrichment? What is unjust enrichment? So that is enrichment of one person, enrichment of one person at the cost of another. In enrichment of the one person at the cost of another. In enrichment of one person at the cost of another. So unjust enrichment means enrichment of one person at the cost of another. In this kind of enrichment, the defendant, upon the circumstances of the case, is obliged by the ties of natural justice and equity to refund the money. In this kind of action, the defendant upon the circumstances of the case, in the circumstances of the case, is obliged by principle of natural justice and equity to refund the money, and equity to refund the money, and equity to refund the money. मतलब क्या हुआ कि मोजेस वर्सेस मैकफार्लान में ये कहा गया यूएस केस में कि अगर अनजस्ट इनरिचमेंट हो गया है, कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के कास्ट पे उसको कोई बेनिफिट मिल गया है, मेहनत किसी और ने की, काम किसी और ने किया, पेमेंट किसी और को हो गई, ठीक है, सारा जो पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस करना था, ठीक है, वो किसी और ने किया और उसका एक्चुअल प्रॉफिट कोई और ले गया। जस्ट इनरिचमेंट नहीं हुआ, जिसको मिलना था उसको नहीं मिला। ये मिस्टेक से भी हो सकता है, दैट मे बी फॉर एनी रीजन, बट मिलना किसी और का था मिल किसी और को गया। अगर नेचुरल जस्टिस और इक्विटी का प्रिंसिपल निकालेंगे और परिस्थितियों को देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं ये किसी और को मिलना, ये इसके लिए वाई नहीं हकदार है, ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो, इक्विटी का वायलेशन हो जाएगा। तो कोर्ट का काम क्या है, अगर ऐसे एप्लीकेशंस या ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां अनजस्ट इनरिचमेंट हो गया है और अगर कोई पार्टी कोर्ट में आके कहती है कि इसका जस्ट इनरिचमेंट कराया जाए, तो कोर्ट केस को देखते हुए एक ऑर्डर करेगी टू ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भूल जाइए, अभी आप ये समझिए कि ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व क्यों किया गया। फर्ज करिए कि मान लीजिए कोई किसी की चीज पा जाता है, बड़ी महंगी वैल्यूएबल चीज है रोड पे, अब वो एक ईमानदार आदमी है, उसने भाई दे दिया, कोई बच्चा पा गया या कोई अच्छा आदमी पा गया। अब वो देखो वैसे भी है ना कि कुछ मतलब एक ट्रेंड है कि कुछ ना कुछ उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, और चलो मान लो
या किसी ने वादा कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ठीक है, या एक चीज तो उसको कुछ मिलना चाहिए, दूसरी चीज मिलने की बात आप छोड़ो, उसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? उसकी लायबिलिटी, मान लो आप किसी का सामान पा गए, हाँ, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको तुरंत यूज कर लेना चाहिए या उसको क्या करना चाहिए? आपको ये पता चल गया कि ये सामान किसी और का है, आप इसके लिए इंटाइटल नहीं है, किसी का गिर गया है, बाय मिस्टेक कहीं छूट गया है, तो अब आप उसको इस्तेमाल करने लगे तो आप ये अनजस्ट इनरिचमेंट कर रहे हैं। यू आर एंजॉयिंग समथिंग फॉर विच समवन एल्स इज इंटाइटल्ड जस्टली। तो इसको कहते हैं जस्ट इनरिचमेंट। तो इस तरह के इनरिचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए देयर शुड बी सम मैकेनिज्म इन लॉ। तो जहां जहां इस तरह के स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, वहां कोर्ट इक्विटी और नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे जो हायर कोर्ट्स होती हैं, जिनको ये पावर होती है संविधान में ही, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो वो नेचुरल जस्टिस और इक्विटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करके इसको फिर जो है डिफेंडेंट को ऑर्डर करती हैं कि नहीं भाई आप जो है प्लेंटिफ को रिवर्ट बैक करिए, इसके लिए वो इंटाइटलमेंट है। तो ये यूएस में था। अब एक देखो इसमें एक और केस आया, फिब्रोसा, FIBROSA, फिब्रोसा वर्सेस फेयरबैन लॉसन। फिब्रोसा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. फिब्रोसा, फिब्रोसा वर्सेस फेयरबैन लॉसन। फिब्रोसा, FIBROSA वर्सेस फेयरबैन लॉसन। लॉसन, इसमें लॉर्ड राइट थे, लॉर्ड राइट, LORD, लॉर्ड, WRIGST, राइट। लॉर्ड राइट ने कहा, क्या कहा, जरा उसको आप सुनो और समझो, या साथ में लिखना चाहो लिखो भी, ठीक है। इट इज क्लियर दैट एनी सिस्टम ऑफ लॉ, इट इज क्लियर दैट एनी सिस्टम ऑफ लॉ इज बाउंड टू प्रोवाइड रेमेडीज। It is clear that any system of law, Indian law, common law, civil law, US law, whatever, so it is clear that any system of law is bound to provide remedies for the cases of what has been called unjust enrichment. What has been called unjust enrichment. It is clear that any system of law, I repeat, it is clear that any system of law is bound to provide remedies for the cases of what has been called unjust enrichment or unjust benefit. What has been called unjust enrichment or unjust benefit, that is to prevent a man from retaining the money of, or some benefit derived from another, which it is against the conscience that he should keep it. Which is against the conscience that he should keep it. तो ये देखो, ये जो मोजेस वर्सेस मैकफार्लान में आया उसी को, अच्छा जो मोजेस वर्सेस मैकफार्लान है ना, वो लॉर्ड मैन्सफील्ड ने बात कही है, तो वहां, और ये फिब्रोसा वर्सेस फेयरबैन है, ये लॉर्ड राइट का ऑब्जर्वेशन है। तो जहां मोजेस वर्सेस मैकफार्लान लिया वहां लॉर्ड मैन्सफील्ड लिख लेना। तो देखो दोनों लोग कमोबेश वही बात मतलब क्लैरिफाई कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई अनजस्ट बेनिफिट किसी को मिल गई है बाय मिस्टेक और व्हाट एवर, अब टेक्निकली वो एज कोई एग्रीमेंट फॉर्मल था नहीं तो उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता फॉर व्हाट एवर। कभी कभी ऐसा है कि कोई टेक्निकल बैरियर नहीं था बट उस समय एग्रीमेंट नहीं किया गया। भाई कई कंट्रीज ऐसी होती है, इवन इंडिया में ही देखो तो हर बात का कोई लिखा पढ़ी या एग्रीमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो या तो एग्रीमेंट हो नहीं सकता था उन परिस्थितियों में, या हुआ नहीं, बट कोई ट्रांजेक्शन हो रहा था, कोई ऑब्लिगेशन हो रहा था, कोई पार्ट परफॉर्मेंस हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट
ये एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज को सिक्योर करने का, उस तरह की कोई चीज हो रही थी दो पार्टीज में, उसमें एक पार्टी को अनजस्ट बेनिफिट हो गया, इंरिचमेंट हो गया। तो नेचुरल जस्टिस इक्विटी या कंसाइंस ये कहता है कि वो चीज उसको लौटा देनी चाहिए। किसको? जिस जो जो उस चीज के लिए एंटाइटलमेंट है। ये अनजस्ट बेनिफिट हो गई, ये ऐसा बेनिफिट आपको हुआ फॉर विच यू आर नॉट एंटाइटल्ड। तो देयरफॉर द कंसाइंस सेज दैट कि तो इस वजह से ये अनजस्ट इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज किया गया। अच्छा, पहले क्या था, स्टेटूटरी प्रोविजंस थे नहीं, तो जो कोर्ट दिया या लॉर्ड राइट ने इवॉल्व कर दिया, तो खास करके कॉमन लॉ कंट्रीज में जहां केस बेस जजमेंट से ही लॉ आगे बढ़ता है, तो यही मोजेस वर्सेस मैकफार्लान का जो रूल है, फिर आगे आने वाले सारे केसेस में लोग साइट करके कि साहब ये देखिए मोजेस वर्सेस मैकफार्लान में लॉर्ड मैनफील्ड ने कहा था, तो इसी का बेनिफिट हमको भी दिया जाए। ठीक है, बाद में लॉ कोडिफाइड होना शुरू हुआ। और इंडिया में भी कोडिफाइड हुआ। तो जब इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स ने जब लॉ बनाना शुरू किया, तो उनके यहाँ वो इस तरह के चीजों से दे हैव बीन यूज्ड टू, उनके यहाँ इस तरह का नियम था। तो उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस इस तरह के एक पार्ट रख दिया, और जहां पे इसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ये अनजस्ट इनरिचमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? है क्या बेसिकली? यस सर। हाँ, अब चलो एक एक करके देखते हैं कि अब आप आगे जितने भी प्रोविजंस देखेंगे 68 से 72, तो आप पाएंगे कि बेसिक जो फिलॉसफी है उसके पीछे वही है जो हमने अनजस्ट इनरिचमेंट वाली बात की। तो आप पता चल गया ना कि इसको कोसाई कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। पहली चीज, या दोज रिजेंबलिंग टू द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट जैसे है। और इनको प्रोटेक्ट करने की एक वजह है। प्रोटेक्ट किसलिए करने की वजह है? क्योंकि यहाँ अनजस्ट इनरिचमेंट हो रहा है, अनजस्ट बेनिफिट किसी को हो रहा है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड नहीं है। तो पहला है इसमें, क्लेम फॉर नेसेसिटीज सप्लाइड टू द पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आर ऑन हिज अकाउंट। देखो, इसमें केवल माइनर की बात नहीं कर रहा है 68 में, एक बात ध्यान देना। जनरली ये माइनर को ही सहित किया जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आर ऑन हिज अकाउंट। दो बातें हैं 68 में, चाहे माइनर हो या एनीबडी हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के अलावा कौन है इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? हाँ भाई, अनसाउंड माइंड सर, अनसाउंड माइंड सर, Unsound mind the person, convicted person serving jail term. तो अनसाउंड माइंड या कन्विक्टेड पर्सन। अब देखो, दो चीजें हैं, या तो वो मेंटेन किए जाने के लिए इंटाइटलमेंट है, बट जो मेंटेन किया जाना था वो नहीं रहा, तो अब उसको मेंटेन कौन करे? वो खुद एग्रीमेंट कर नहीं सकता है कि भाई आप मुझे मेंटेन कर दीजिए, कल मैं कमा के आपको वापस कर दूंगा। एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन कि मान लो अनसाउंड माइंड है, मेजर हो गया, या कोई ऐसा है जो लीगली बाउंड है किसी को मेंटेन करने के लिए, बट वो मेंटेन नहीं कर पा रहा फॉर वॉट एवर रीजन, इनकैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या वॉट एवर रीजन। तो 68 ये कह रहा है कि इफ अ पर्सन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी प्लीज लुक ऑन दी टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 68, कि इफ अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के, और एनीवन whom he is legally bound to support, या कोई ऐसा आदमी वो कैपेबल है और उसको किसी को मेंटेन करना है, जैसे फादर है उसको अपने चाइल्ड को मेंटेन करना है। तो दो बात, एक तो ये कि ये पर्सन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person। अब ये another person को जरा अंडरलाइन करना, is supplied by another person। इसमें दो तीन चीजें, incapable of entering into a contract अंडरलाइन, और
anyone whom he is legally bound to support, not morally bound to support, legally bound to support. तो एक आदमी है जो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या तो उसके लिए, या तो किसी ऐसे आदमी के लिए जिसके लिए वो लीगली बाउंड है उसको मेंटेन करने के लिए, लीगली अकाउंटेबल है उसको मेंटेन करने के लिए. तो फर्स्ट थिंग, ए पर्सन हु इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और that such person who is not capable of entering into a contract, either to him or to anyone to whom he is responsible to maintain. Yes, या तो उसके खुद के लिए, या तो उस आदमी के लिए जिस आदमी के लिए वो लीगली बाउंड है मेंटेन करने के लिए. जैसे फादर बाउंड है, हस्बैंड बाउंड है वाइफ को मेंटेन करने के लिए, फादर बाउंड है, लीगली बाउंड है, मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी है, फिर हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है. ठीक है, अब तो फिर आप अपने ओल्ड एज पेरेंट्स को भी बाउंड है मेंटेन करने के लिए, एक नया लॉ आ गया. तो इन परिस्थितियों में एक आदमी है जो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो या तो उसकी जरूरतों के लिए या उस आदमी की जरूरतों के लिए जिसके लिए ये आदमी जो इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको लीगली बाउंड है मेंटेन करने के लिए, क्या किया जाता है, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसिटीज suited to his conditions in life. अब देखिए दो आदमी, एक आदमी who is not capable of entering into a contract, the second person another person. अब सवाल ये नहीं कि जो दूसरा आदमी है वो कैपेबल है या नहीं, उसको आप एक तरफ रखिए, कैपेबल मान के चलिए. तो ये जो दूसरा आदमी है, या तो उस आदमी को जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको उसकी जरूरतों को पूरा करता है, या तो उस आदमी की जरूरतों के लिए जिसको मेंटेन करने के लिए ये जो आदमी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बाउंड है बट मेंटेन कर नहीं पा रहा क्योंकि कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करता है. या तो उसकी जरूरतों को पूरा करता है, या तो उसके बिहाफ पे किसी की जरूरत को जिसके लिए वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए. तो आपको क्या लगता है, किसी ने अगर ऐसा कर दिया, ठीक है, तो अब देखिए चूंकि कोई एग्रीमेंट हो नहीं रहा है, चूंकि वो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है. एक आदमी किसी ऐसे आदमी के जो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसकी नेसेसिटीज को, लाइफ की नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है, या उसके बिहाफ पे किसी आदमी की जिसको मेंटेन करने के लिए वो बाउंड है उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Is that this much is clear? When a one person is supplying or satisfying the basic necessities of a person who is not the personal basic necessities of the person who is not competent to contract, or on his behalf to anyone to whom he is legally bound to maintain, then don't you think that this person deserves to be refunded his money? When such persons become capable of refunding it, कल को वो आदमी कैपेबल हो जाता है 10 सालों बाद, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आदमी बाद में जिसके पास मीन्स आ जाते हैं, कैपेबल हो जाता है उसको, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या ना, जब ये दूसरा आदमी जिसने सप्लाई किया कोर्ट में जाएगा तो ये कहेगा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, मैं कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वही माइनर वाला आर्गुमेंट लेगा जो मोहरी बीवी में माइनर ने लिया. वो कहेगा भाई तो था नहीं इसको वापस किए जाने का, तो मैं वापस करूंगा नहीं. आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो अब सवाल ये हुआ कि अगर इस तरह की चीजों को अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो होगा क्या कि किसी ने किसी की मदद कर दी, अब अनजस्ट इनरिचमेंट हो गया, भाई उसके पैसे पे उसने उसकी जरूरतों को एक समय रहते उसकी मदद की, उसकी और अब उसी के पैसे और उसी के रिसोर्सेज पे, उसी के सपोर्ट से वो इतना आगे बढ़ गया, और छोड़ो कोई और भाई
जस्टिस तो ये कहता था कि उसको उसका डबल वापस करना था, उसको डबल क्या ट्रिपल वापस करना था। बड़े गाढ़े वक्त में उसने उसकी मदद की थी, या किसी ऐसे आदमी की मदद की थी जिसको जिसको उसको मेंटेन करना था। तो सिस्टम जो जस्टिस कंसाइंस है वो ये कहता है इसको तो डबल वापस करना था, ट्रिपल वापस करना था। तो चलो ये तो लीगली पॉसिबल नहीं, बट जो 68 कहता है, जो मोजेस वर्सेस मैकफार्लान में कहा गया कि एटलीस्ट जब आप कैपेबल हो तो उस आदमी को जो है कम से कम जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है उतना तो आप दे ही दे, अदरवाइज ये अनजस्ट इनरिचमेंट हो जाएगा। आपका इनरिचमेंट हो रहा है बट दैट इज नॉट जस्ट। और ये जस्ट कब हो जाएगा, इसको अनजस्ट को जस्ट कैसे, कि जब आप इसको वापस कर देंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया कि दो देयर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड, अब बैक टू द लास्ट part of the 68, the person who has furnished such supply is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. तो देखो वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल हो या ना हो, लेकिन अगर उसने उसकी जरूरत की है तो बाद में उसकी प्रॉपर्टी से वो रिइंबर्स किया जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट, देखो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना एक चीज है, बट उसके पास प्रॉपर्टी जरूर होगी, और मतलब ये रिइंबर्समेंट तभी कराया जाएगा जब उसके पास प्रॉपर्टी होगी। फ्यूचर में प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है, फ्यूचर में वो मान लो कैपेबल होकर खुद प्रॉपर्टी अर्न कर सकता है। कुल मिला जुला के मतलब है, ठीक है, तो वो आदमी रिइंबर्स करा सकता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है पहले जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसीलिए ये सेक्शन 68 में, अब जैसे आप इलस्ट्रेशन देखो तो बेटर समझ में आ जाएगा। दो इलस्ट्रेशंस अटैच हैं। यस, A supplies B a lunatic with necessities suitable to his conditions in life. A is entitled to reimburse from the B's property. B की प्रॉपर्टी से A ने एक ल्यूनेटिक आदमी को, ल्यूनेटिक मतलब नॉट कैपेबल ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, पागल आदमी को उसकी लाइफ की नेसेसिटीज से, नेसेसिटीज मतलब आप रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन समझ सकते हैं। तो फिर बाद में ए इंटाइटल है टू रिइंबर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी। टेक्निकली देखो अगर 68 नहीं होता तो फिर जो है ए रिइंबर्स नहीं करा सकता था। भाई एक कोर्ट में किस बात के लिए जाएगा, किसी एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए। कोई एग्रीमेंट है ही नहीं है ल्यूनेटिक से, अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट भी किया था तो वो इन्फोर्सेबल है ही नहीं, क्योंकि ल्यूनेटिक इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब सेकंड देखते हैं, ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी अ ल्यूनेटिक विथ नेसेसिटीज सुटेबल टू देयर कंडीशंस इन लाइफ। तो देखो अब या तो ल्यूनेटिक हो या साउंड हो या अनसाउंड माइंड हो, हर आदमी अपने बीवी बच्चों को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है। इट्स बेसिक लॉ, अब आपको पढ़ाया जाएगा आगे हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में भी और इसमें सीआरपीसी में। तो ए ने सप्लाई किया, मेंटेन किया किसको, वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी जो कि ल्यूनेटिक है। बी की वाइफ और चिल्ड्रन को ए ने मेंटेन किया, बी जो कि ल्यूनेटिक है, विद द necessities suitable to their conditions in life. A is entitled to reimburse from B's property. So, is that clear? What is section 68? What is philosophy behind it? If anyone has any doubt, let me know. Then otherwise we will move on. 69. The another kind Okay. of. Sir, एक doubt है. हाँ बताओ. One Sir, by एक question. सर यहाँ पे लास्ट लाइन में सेक्शन 68 में जब प्रॉपर्टी लिखा है, अगर वहाँ हम पर्सन कर दें तो क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा? सर हम जब मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस पढ़ रहे थे और लास्ट चैप्टर का जितना भी केस है, तो उसमें जब भी सेक्शन 68 पे जो भी डिस्कशन आया है तो वहाँ पे ये बार बार बोला गया है कि हाँ माइनर की प्रॉपर्टी के लिए माइनर को लायबल किया जा रहा है, माइनर पर्सन लायबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी वही तो अगर है, हम यहाँ भी वही है।
मान लीजिए हम पर्सन ही कर दे तो क्या इसका इम्पैक्ट जाएगा, ये नहीं नहीं, माइनर को पर्सनल लाइबिलिटी की ही नहीं जा सकती, आप समझिए। एक पर्सन जो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है। पर्सनल लाइबिलिटी मतलब आप समझ रहे हैं, पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी। देखो जब बात यह है कि भाई किसी से तभी आप लीजिए ना, तब तो फिर मान लीजिए जब उसके पास पैसा नहीं था तब आपने उसकी मदद की, आज भी उसके पास पैसा नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या, तब अनजस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, तब तो ये जबरदस्ती हो गई। हाँ, आप बात समझिए भाई, आज भी उसकी वही स्थिति है, उतना ही वो गरीब है, आप समझिए। अब आप कह रहे हैं नहीं तुम चलो भाई, पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे, फिर उसको सिविल इंप्रिजनमेंट कराएंगे, यही तो कराएंगे भाई। कोई मान लीजिए उसके पास कुछ पैसा ही नहीं, लोन ले लिया, अब वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो टू बी पुअर इज नॉट ए क्राइम। टू बी पुअर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में केस पढ़ाया जाएगा आपको, जस्टिस वी कृष्णा अय्यर ने इसको एस्टेब्लिश कर दिया, उसमें वो मैं नाम भूल रहा हूँ केस का, उन्होंने कहा कि टू बी पुअर इज नॉट ए क्राइम। हाँ, तो मान लो मतलब देखो बैंक वगैरह इसीलिए गारंटर खोजते हैं ना, क्योंकि इन केस मान लो नहीं ही दे पाया वो, तो ज्यादा से ज्यादा उसका सिविल खराब होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बहुत फोर्स करेंगे, और वो भी मतलब जनरली जजेस ऐसा करते नहीं है, और अगर करते भी हेलो, यस सर। ये सर देखो हमारे साथ नेसेसिटीज की सप्लाई के लिए है, बेसिक नेसेसिटीज के लिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी उसकी लग्जरीज को आप फुलफिल कर रहे हैं, और तो वो आप समझो ये वास्तव में बड़ा ट्रू केस है। कि एक आदमी, अब अगर प्रॉपर्टी से ही रिकवरी इसलिए कही जा रही है क्योंकि मान लो वो कल भी देने लायक नहीं था, आज भी देने लायक नहीं है, भाई कब आप कहेंगे कि अब इसको पैसा वापस दे देना चाहिए इसको, आप बताइए। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भूल जाइए, नेचुरल जस्टिस इक्विटी कब कहते, जब उसके पास आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए। अब ये प्रॉपर्टी देखो वो खुद से कमा के ला सकता है, नहीं तो मान लो कोई गिफ्ट मिल गई, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, या कोई पहले डीड थी कि भाई जब ये बड़ा होगा तो इसके नानी की कोई प्रॉपर्टी थी वो इसके नाम से आ जाएगी, कोई बिल पहले से है कि भाई जैसे ही ये बड़ा होगा, ऐसी तमाम सारी चीजें, तो उसको पास प्रॉपर्टी या तो बस ये 68 का गॉट इट ना, तो चलो एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? तो दिस इज सेक्शन 68. नाउ second, that is section 69. Reimbursement of the person paying money due by another in payment of which he is interested, section 69. रीइंबर्समेंट ऑफ, यहां भी देखो रीइंबर्समेंट कराने की बात हो रही है, किसकी? लोन किसी और का पे कोई और कर रहा है, लेकिन अब ऐसा करेगा क्यों भाई, किसी और का लोन कोई और क्यों पे करेगा? अब जैसे ये गारंटी वाला गारंटर है, जैसे मान लो इंटरकनेक्टेड है, ठीक, जैसे मान लो कोई फ्लैट है या कोई कार है, कोई गाड़ी है जिसपे बैंक लोन चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास कोई आया, कहा ये देखो मेरी पास कार है, मैं अब इसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तुम चलो मेरा बैंक का लोन क्लियर कर दो, मेरे पास ओनरशिप आ जाएगी, ओनरशिप में तुमको टाइटल ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? बोलो, है कि नहीं? तो बी ऐसे लोनदारी से चल रहा था, ए आया उसका पेमेंट किया, अब बी पलट गया, बी कह रहा है चलो अब प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं बेचूं ना बेचूं तुमको, मैं किसी और को बेच दूंगा, ठीक है। तो बड़ा क्लियर कट मामला है, तब ये आदमी रीइंबर्स करा सकता है क्या, जो पेमेंट उसने किया है। ओनरशिप तो नहीं हो सकता है प्रॉपर्टी की, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की, बट जो पेमेंट उसके बिहाफ पे किया है उसको रीइंबर्स करा सकता है। तो बेसिकली 69, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी प्लीज लुक ऑन सेक्शन 69
ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ ए मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. ठीक है, अब देखो इलिस्ट्रेशन है. बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल on a lease granted by A the जमींदार. ए की एक जमींदार है, उसकी कोई जमीन है. बी लीज पे लिया हुआ है. कहा? बंगाल में. लीज जानते हैं ना, लीज बेसिकली जैसे आप एक घर लेते हैं ना किराए पे, तो इसको लीज ही कहेंगे. ठीक है, कोई चीज फॉर द टाइम बीइंग उसको एंजॉय करना. तो वो जो एग्रीमेंट होता है कि जब आप रेंट पे करते हैं कि आप कुछ पे करेंगे, तो ए बी और ए में हुआ कि भाई ये जमींदार था, उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसने खरीदा नहीं. देखो खरीदा होता तो सेल होता. उसने कहा कि आप ये देखो जो तमाम रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह या नहीं लोग जमीनें लीज पे लेके तमाम बिजनेस करते हैं किसी से, तो वो लीज का मतलब वही हो जाता है. लीज मतलब लीज एंड एन एग्रीमेंट. इट्स टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, केवल उसका फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. लीज 10 साल के लिए होता है, 11 साल के लिए होता है, 90 साल के लिए होता है. इन नोएडा में ना जितने लोग फ्लैट खरीदते हैं, आपको बता दूं, बेसिकली वो ओनर नहीं होते हैं. बेसिकली वो आपको लीज पे प्रॉपर्टी मिलती है. कितने सालों के लिए? 90 साल के लिए. फिर बाद में अगर बिल्डिंग ठीक ठाक रही और आपका कंडक्ट अच्छा रहा तो वो रिन्यू हो जाता है. उसके टर्म एंड कंडीशन होते हैं. तो लीज इज बेसिकली वेयर यू डू नॉट गेट द ओनरशिप, यू जस्ट गेट द प्रॉपर्टी फॉर अ enjoyment of the property और for the time being. ठीक है, तो ये एक तरह का मतलब सिस्टम है. लीज इज बेसिकली अ एग्रीमेंट. तो ए ने बी ने ए से, जो जमींदार है, उससे बंगाल में एक प्रॉपर्टी लीज पे ली. द रेवेन्यू पेएबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट. अब चक्कर क्या था कि ये जमींदार साहब जमींदार तो थे, लेकिन ये इस स्थिति में थे ही नहीं कि अपनी जमीनों का या अपने स्टेट का रेवेन्यू दे दें. हर जो जितने भी आपके पास लैंड होती है, उस लैंड की लैंड रेवेन्यू देनी पड़ती है. किसको? गवर्नमेंट को. वो रेवेन्यू लॉज है, वो ये कहते हैं कि जो जिसके पास जमीनें हैं, जैसे हाउस टैक्स लगता है हाउस पे, उसी तरह से जमीन पे, एग्रीकल्चरल लैंड पे आपको रेवेन्यू देना पड़ता है. ठीक है, ये जो डीएम को कलेक्टर बोलते हैं ना, वो इसीलिए बोलते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर? एनीवन? सर कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर होता है और डीएम है, उसके पास क्वेज़ी जुडिशियल पावर होती है. हाँ, वो तो ठीक है. उसको कलेक्टर बोलते क्यों है? रेवेन्यू ऑफिसर तो ठीक है, वो रेवेन्यू ऑफिसर भी है और रेवेन्यू कोर्ट भी है, दोनों. उसको कलेक्टर बोलते क्यों? कलेक्टर टर्म सर ब्रिटिश वालों ने दिया था कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो वहीं से कलेक्टर आया. अच्छा, डीएम क्यों बोलते हैं उसको? सर पहले क्या होता था कि उसके पास जो है पनिश करने की भी पावर होती थी, तो इसीलिए उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते थे. लेकिन जब सुनो, देखो ऐसा है ना कि लिसन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक तरह का मजिस्ट्रेट है. डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो जो डीएम है ना, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है. उससे बड़ा कोई मजिस्ट्रेट नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल का मजिस्ट्रेट जो है वो डीएम है. ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सिस्टम था, वो ऐसे गवर्नेंस चलाते थे. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये देखो सीआरपीसी का मतलब लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्टर करने का जो है ये मैकेनिज्म है, उसके तहत वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है. तो जब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है और गवर्नेंस को देखता है, अच्छा वो कैसे चलाएगा? सीआरपीसी के अंदर चलाएगा, सीआरपीसी से चलाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो लॉज है. तो जब वो एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में जो उसको पावर है उसको एक्सरसाइज करता है, तब उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, सेम पर्सन को. और जब वो रेवेन्यू लॉज में कलेक्ट करता है, देखो कलेक्टर टर्म कलेक्ट करने से आया, तो कलेक्ट, जब वो रेवेन्यूज को कलेक्ट करता है, सारे एग्रीकल्चरल लैंड का रेवेन्यू एनुअली उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी है, इसीलिए उसको कलेक्टर कहा जाता है. ठीक है, तो पहले ब्रिटिशर्स ने ये दोनों बाइफर्केटेड था. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम कोई और करता था, कलेक्ट करने का काम कोई और करता. कलेक्ट मतलब पैसा. ब्रिटिशर्स आए ही थे पैसा लेने,
तो इसीलिए देखो कलेक्टर जो है ना बड़ा रिगार्ड के साथ कलेक्टर की भी, कलेक्टर से कलेक्टर पहले आप देखोगे तो डीएम ज्यादा पॉपुलर है। एनीवे अभी भी काम हो कलेक्टर का। ऐसे ही देखो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, तो सेम आदमी डिस्ट्रिक्ट भी जज भी होता है और सेशन जज होता है। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में क्या अंतर है? वो ये अंतर है कि जब सिविल साइड से जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। तो जब वही सेम आदमी हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट एज ए सिविल साइड बैठता है तो डिस्ट्रिक्ट जज, और वही आदमी जब क्रिमिनल मैटर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हाईएस्ट जज के रूप में बैठता है तो उसको सेशन जज कहते हैं। ठीक है, आगे आपको सीआरपीसी में बताया जाएगा अगर जो है आपके टीचर। तो ये तो रहा कलेक्टर का। तो एनीवे पॉइंट कमिंग बैक सर एक क्वेश्चन था मेरा सेक्शन 68 के रिगार्डिंग कि सर अगर अभी मान एक लीजिए मैं मतलब आपको तभी पूछना था। अब मैं 69 फिनिश कर लूं, फिर एट द क्लास ऑफ दैट वी विल टेक अप। ओके सर। तो देखो 69 ये कह रहा है ना, मतलब इलिस्ट्रेशन को समझो। एक जमींदार था, उसको लैंड रेवेन्यू देना था गवर्नमेंट को, दे नहीं रहा था, बट प्रॉपर्टी तो उसको थी ही, एरियर चल रहा था। बी को उस प्रॉपर्टी की जरूरत थी, बी गया उसकी लीज करा लिया, उसको यूज कर रहा था। अब गवर्नमेंट को जब पता चला, गवर्नमेंट पहुंची पहले अपना एरियर कि भाई आप एरियर हमें दे नहीं पा रहे हो और प्रॉपर्टी लीज करके अपने पैसा कमा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने नोटिस भेजी कि भाई ये एरियर है जो लैंड रेवेन्यू का, इस फाइनेंशियल ईयर तक उसको क्लियर करो। ठीक है, और इधर बी लीज पे लेके उससे बड़ा सा होटल डेवलप कर रहा है या बड़ा सा रिसोर्ट बना रहा है, ठीक है, या अपना पेट्रोल पंप खोलने की प्लानिंग कर रहा है, सीएनजी पंप खोलने की प्लानिंग कर रहा है, कोई फैक्ट्री लगाने की प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी उस पे इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहा है। मतलब कुल मिला जुला के वो इंटरेस्टेड है कि ये प्रॉपर्टी बनी रहे ए की, क्योंकि ए से ही उसने लीज कराई है। और होगा क्या, अगर ए लैंड रेवेन्यू नहीं देगा तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होल्ड कर लेगी, ठीक है, सील कर देगी। तो बी बेसिकली इंटरेस्टेड है कि ए जिसको उस प्रॉपर्टी का लैंड रेवेन्यू क्लियर करना है क्लियर करे। अब मान लो कि बी ने ए के बेस पे ए के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। हा? उसने ये से कहा कि भाई चलो ऐसा है कि मैं जाके कलेक्टर के यहाँ रेवेन्यू जमा कर देता हूं और आगे हम लोग रेंट में एडजस्ट कर लेंगे। वो गया कर दिया, अब प्रॉपर्टी हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है, महीने महीने मेरा पूरा जो रेंट है वो दो, नहीं तो मैं किसी और को लीज पे कर दूंगा, लीज तुम्हारा कैंसिल कर दूंगा। हाँ, तो ये कैसा कर ए को ऐसा करने देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर वो कोर्ट में जा सकता है इन्फोर्स कराने के लिए, तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं भाई, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था ए और बी के बीच में कि तुम मेरा लोन मेरा रेवेन्यू दे दो और मैं तुमको वारंट में एडजस्ट कर लूंगा। कोई ऐसा फॉर्मल एग्रीमेंट तो हुआ नहीं भाई। कलेक्टर पहुंच गया साइट पे, वहां पे वो कंस्ट्रक्शन करा रहा था अपने होटल का या मान लो अपनी फैक्ट्री लगाने का, जो है बी एक कहा कि भाई तो ये जमींदार साहब की प्रॉपर्टी है, इस पे इतना लैंड रेवेन्यू है, काम रोको। अब काम रुक गया तो बी को नुकसान होगा। बी ने कहा भाई ये पैसा आप लीजिए, मैं जमींदार साहब से बात कर लूंगा, उनसे मैं अपना रिम्बर्स करा लूंगा, वो उनका मेरा रहेगा, आप सेटिस्फाई करो। उसने उनके बिहाफ पे पेमेंट कर दिया। अब जब ये गया उनसे जमींदार साहब के यहाँ कि भाई उसको एडजस्ट करने के लिए हर महीने 5,000 रुपए मैं कम करूंगा जो आपका लैंड रेवेन्यू दिया, द लैंड रेवेन्यू विच आई हैव पेड। जमींदार कह रहा नो नो, मैंने तो कहा नहीं था कि पेमेंट कर दो, कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं। अब होगा क्या, अगर तो जमींदार साहब अनजस्ट इनरिचमेंट इंजॉय करेंगे, अनजस्ट बेनिफिट इंजॉय करेंगे, वो बेनिफिट जिसके लिए वो इंटाइटल नहीं। या तो वो सारा रेवेन्यू खुद पे करते, तब तो सारे पूरा का पूरा रेंट मांगते। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। तो बी जाके कोर्ट में यही 69 के अंदर, भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट ये ऐसा एप्लीकेशन है जो कि कोसाई कॉन्ट्रैक्ट, इसमें अनजस्ट इनरिचमेंट हो रहा है, तो वो डिफेंडेंट को मजबूर किया जाएगा कि भाई वो पेमेंट रीइंबर्स करे। तो इज दैट क्लियर व्हाट इज सेक्शन 69? यस सर। चलो 69 पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन सेक्शन 70।
तो 68 वाला पूछ लूं? हाँ बताओ बताओ क्या है प्रॉब्लम। सर 68 में मैं पूछ रहा था सर, अगर मान लीजिए माइनर अपने आप मतलब मेजर बनने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है? बिल्कुल, अगर उसकी प्रॉपर्टी है, हम्म। ठीक है, तो वो कर ही सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हम्म, ए, अरे भाई बिना हमारे यहाँ तो आपकी लाइबिलिटी है। बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के? तो इज दैट क्लियर? हेलो। सर आपका वॉइस नहीं आया था बीच में। यस सर। हाँ, नाउ कमिंग टू सर ये सेक्शन आपका 70 application of a person enjoying benefit of non-gratuitous act। तो बेनिफिट तो आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी नॉन ग्रेट्युटस एक्ट और नॉन ग्रेट्युटस एक्ट क्या होता है तो बताना चाहेगा? समवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन ग्रेट्युटस एंड नॉन ग्रेट्युटस एक्ट? हाँ भाई। हेलो, am I audible? Am I Yes, audible? sir, audible. Yes, sir, yes. audible. तो ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। सर किसी चीज को फ्री में नहीं देना सर एक सर, ऐसा कुछ है ग्रेटिट्यूड क्या? देखो जैसे दो काम may आ I सकते किसी किसी। हाँ बताइए भाई। sir a gratuitous act is one which is done on a pro bono basis, means which might not have any legal obligation, हम्म, whereas in a non gratuitous act there can be legal obligation, हम्म, like giving charity is gratuitous act एनीवे गुड। there. तो सी ग्रेटिट्यूअस मींस यू आर डूइंग समथिंग प्रो बोनो, आप एज ए मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड आप डूइंग, आप उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, एज ए मैटर ऑफ कटसी आप कर रहे हो, किसी के लिए कुछ कर रहे हो, बदले में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि उसका वो पे करे या उसके बदले में कुछ वो करे, समथिंग फॉर समथिंग नहीं है, आप समझ रहे हो? हाँ? कहते हैं। और नॉन ग्रेटिट्यूअस मतलब कि किसी ने आपके लिए कुछ किया और नॉन ग्रेटिट्यूअस किया, उसके बदले में वो एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई एग्रीमेंट नहीं किया उसने, ठीक है, चलो जिस वजह से भी उसको नहीं पता था कि भाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखते हैं क्या लाइबिलिटी है, क्या ये आदमी रिम्बर्स करा सकता है कि नहीं। तो सेक्शन 70 वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, अनलॉफुली नहीं, किसी के लिए जाके कोई मर्डर कर दिए कि भाई तुम्हारे लिए तो मैंने देखो एक्स को मारा था, तुम्हारे लिए हमने वो प्रॉपर्टी देखो कब्जा कराई थी, तो लॉफुली, अनलॉफुली नहीं। So where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, not intending to, तो देखो दो चीज, अनलॉफुली को लॉफुली को करो अंडरलाइन, डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए कुछ लॉफुली करता है या उसको कुछ देता है, डिलीवरी देता है, बट नॉट ग्रेटिट्यूअसली, नॉन ग्रेटिट्यूअसली मतलब बदले में वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, not intending to do so gratuitously and such other person enjoy the benefit thereof। तो किसी ने किसी आदमी के लिए नॉन ग्रेटिट्यूअसली कुछ किया और उसकी बेनिफिट वो आदमी एंजॉय किया, ठीक है, आप रेस्टोरेंट पे गए, ठीक है, या किसी मैगी शॉप पे आपने गाड़ी रोकी, ठीक है, आप पहाड़ों में घूम रहे हैं, मसूरी नैनीताल, ठीक है, और मैगी पॉइंट पे आपने गाड़ी खड़ी की, आप वहां बैठे, तो आप तो स्मोक करने के लिए फॉर वॉट एवर पर्पज आप रुके, तो उसने भाई चाय ला के रख दी, मैगी ला के रख दी, आपको भी लगा अरे चलो ठीक है दे रहा है, खा लिया, एंजॉय किया। तो आप जब उसने पैसा मांगा, आप यू आर सेइंग अरे मैंने कहा तो था नहीं चाय लाओ मैगी लाओ, कैन यू टेक दिस आर्गुमेंट? और अगर आप दे रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं फॉर्मली, तो वो लीगली तो इन्फोर्स करा नहीं सकता है, मामला कोर्ट में जाएगा, आप कहोगे अरे साहब हमने इनसे तो कहा नहीं था, कोई मैंने मांगा ना, कोई एग्रीमेंट ओरल रिटन कुछ हुआ नहीं,
ये ला के रख दिया, हमने एंजॉय कर लिया, ठीक है। तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्स कराया नहीं जा सकता है। अब सवाल ये है कि अनजस्ट इनरिचमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिना पेमेंट किए आपने खा लिया। एनीवे, so where one person lawfully does anything for another person or deliver anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect or to restore the things so done or delivered. The following two illustrations are appended to the section. A tradesman leaves goods at B's house by mistake. B treats the good as his own. He is bound to pay A for them. A saves B's property from fire. A is not entitled to compensation from B if the circumstances show that it intended to the gratuitous. दोनों उदाहरण समझ में आ गया और केस समझ में आ गया कि शुड आई एक्सप्लेन? जरा एक बार आप लोग अपने से पढ़िए, कोई बहुत लॉजिक वाली बात नहीं है 70 में। इलस्ट्रेशन को पढ़ेंगे और उसको पढ़ेंगे तो इट्स क्वाइट क्लियर। भाई कि आपके पड़ोसी के यहाँ आग लगी, आप आग बुझाने पहुंच गए, ठीक है। तो कैन यू गो टुमारो एंड कंपेल ए टू पे फॉर द सेम? कि भाई मैंने इनके यहाँ 4 बाल्टी पानी लेके मैं गया था आग बुझाने, तो मुझे जो है दिन भर की दिहाड़ी दी जाए। कैन यू डू दिस? वो आपने ग्रेटिट्यूअसली किया था कि नॉन ग्रेटिट्यूअसली किया था? सर ग्रेटिट्यूड। हाँ, लेकिन अगर मान लो वही काम इन्होंने फोन किया कि भाई मेरे घर में आग लग गई, आप जल्दी आ जाओ, फायर सर्विस को बुलाया, ठीक है। एक वो रूरल अपटाउन सर्विसेज वाला केस है ना, फायर ब्रिगेड वाला, हाँ, टाट में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। देखो, आप सरकारी सेवा को फोन करते हो वो आता है तो वो अलग चीज हो गई, उसमें आपका इंटेंशन क्लियर है कि आप, लेकिन मान लो ऐसा एरिया जहां पे प्राइवेट फायर सर्विसेज है, और रूरल अपटाउन करके है फायर कंपनी का एक केस आपको टॉट में पढ़ाया गया होगा, तो इसने फोन किया, हाँ, तो उसने फोन किया, तो ग्रेटिट्यूअस था कि नॉन ग्रेटिट्यूअस था? नॉन ग्रेटिट्यूअस। क्योंकि भाई आपने फोन करके आग बुझाई और आपको पता है कि सामने वाला प्राइवेट फायर सर्विसेज है, उसकी वो चार्ज करता है, ठीक है। या मान लो ये टोइंग सर्विसेज, हाईवे पे आपकी गाड़ी फंस जाती है, टोइंग सर्विसेज वालों को, प्राइवेट वालों को फोन करते हैं ना। अब आप कह रहे हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट को देना चलना टोई टाइप, तो ये नहीं है, वहां आप ग्रेटिट्यूअस वाला मामला नहीं है, एक तो ये बात। और इलस्ट्रेशन फर्स्ट जो है वो और क्लियर कर देता है मामले को। मान लो आपका दोस्त या फॉर एनी रीजन कोई अपनी प्रॉपर्टी आपके यहाँ रख के चला गया, बाइक, कार, चाबी वगैरह रख के, ठीक है। कोई टैक्सी ड्राइवर छोड़ के चला गया, महीने भर उसकी टैक्सी एंजॉय किए, जबकि स्थिति ये थी कि वो हर दिन का टैक्सी चार्ज करता था। तो डोंट यू थिंक दैट द टैक्सी वाला इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स द मनी? इज इट सो और नॉट? He should be, sir. हाँ, तो दिस इज सेक्शन 70। आप किसी को सेक्शन 70 पे इफ आई हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू दी इसी पे आगे भी एक केस आएगा, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स का। वी विल डू इट सेपरेटली। आज स्टेटूटरी प्रोविजंस कर लेते हैं। सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लुक ऑन सेक्शन 71। ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स। सर सेक्शन 70 में डाउट है। अब तक कहाँ थे भाई, बताओ, पूछो जल्दी से। सर अगर ये कोई गवर्नमेंट सर्विस, अगर जैसे गवर्नमेंट टीचर अगर कोई सर्विस करता है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो वो मतलब सेक्शन 70 के अंदर वो मतलब रीइंबर्समेंट ले सकता है क्या? अरे भाई, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट आपको उस दिन स्कूल पे लगाने के बजाय कहीं और लगा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है। तो सैलरी तो सर टीचिंग के लिए है।
नहीं नहीं, आप फिर सर्विस कंडीशंस नहीं पढ़े हैं। किस लेवल के टीचर की बात कर रहे हैं? प्राइमरी लेवल, टर्शियरी लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल? उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें लिखा रहता है, ठीक है। ओके हाँ? ओके। अगर प्राइमरी लेवल पे है तो उस पे लिखिए, देखिए लिखा रहेगा कि आपसे सरकार समय समय पे और भी गैर शैक्षणिक कार्य ले सकती है, ठीक है। तो ओके ओके। जनगणना कराना, बालक बालिका योग कराना, ठीक है। अभी ओके। यूपी में जब स्ट्राइक हो गई तो टीचर्स की ड्यूटी फीडर पे लगा दी गई थी, मतलब ऐसा प्लान चल रहा था, ठीक है। यस सर। हाँ, तो फीडर पे ऑन ऑफ भी करना पड़ सकता है। हाँ सर विलेज में हाँ बीडीओ होता है इलेक्शन के लिए, वो टीचर ही होते हैं ग्रेजुएटी पे। हाँ, नहीं नहीं, वो देखो वो एक अलग चीज है। अब डिपेंड ये है कि आप इंटेंशन को देखो। अगर किसी ने वो, ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है पूरा। एनीवे, नाउ कमिंग टू सेक्शन 71। A person who finds goods belonging to the another and takes him into his custody is subject to the same responsibility as a बेली। अब बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हाँ भाई सूर्य प्रताप जी, यू आर वेरी वेरी लेट भाई। हाँ मिस्टर सूर्य प्रताप, यू हैव एंटर्ड एट अ वेरी राइट टाइम, एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस। सर आई जॉइंड इन द बिगिनिंग ओनली, बट मैं क्लास से बाहर निकल गया था, कुछ नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से बात ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। 8-9 बार ट्राई कर चुका हूँ। चलो भाई। 71. A person who finds goods belonging to the another and takes them into his custody is subject to same responsibility as a बेली। तो बेलर एंड बेली क्या है? आप टेलर के यहाँ अपना कपड़ा देके आते हैं बनवाने के लिए, या घड़ी वाले के यहाँ घड़ी देके दे आते हैं, ठीक है। क्या एग्रीमेंट होता है? उसी को बेलमेंट कहते हैं कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने प्रॉपर्टी दिया, वो पर्पज फुलफिल हुआ, वो प्रॉपर्टी वापस, ठीक है। भाई टेलर आपके कपड़े को, अब देखो दो केस है। टेलर के यहाँ आपने कपड़ा दिया, सूट बना के वो खुद लगा बढ़िया कपड़ा है, खुद बना के पहनने लगा। हाँ? दूसरा है कि वो आप गए लेने, तो उस दौरान जो रख रहा है उसकी क्या कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी में? बेली की कैपेसिटी। बेलमेंट पढ़ाया जाएगा आगे। बेली की कैपेसिटी ये होती है कि जिस प्रॉपर्टी को दिया गया है उसका टेक केयर करना, जिस पर्पज के लिए दिया गया है वो पर्पज को फुलफिल करना, और फिर रिटर्न बैक टू दी एक्चुअल ओनर, ठीक है, बेलर को वापस करना। तो ये जो टेलर को, घड़ी वाले को आप घड़ी दे के आते हो, ये सब दे के आते हो ना, ये वही है, बेलमेंट है। तो यही कह रहा है 71 कि ये पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू द अनदर, एक आदमी जो कि दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी टेक हिम इनटू कस्टडी सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। तो अगर आप किसी की चीज, आपको पता चल गया ये किसी और की है, आपको मिलता है, तो आप उसको रखे रहिए। ऐसा ना हो कि अपने लिए इस्तेमाल करते रहिए या बेच दीजिए, ठीक है। एज ए बेली आप रखे रहिए, जिस दिन उसका ओनर आएगा उस दिन आपको उसको वापस करना है, ठीक है। करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई हमने पाया, तुम थे नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, ठीक है। कौन तुम कौन हम मुझे सड़क पे मिली। अब वो स्टेब्लिश कर दिया कि नहीं, इनको पता था कि ये किसकी। अभी क्रिमिनल लॉ में भी आपको बताया जाएगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये क्राइम भी है बेसिकली, ठीक है ना। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दो बताया जाएगा। एक तो ट्रस्ट मतलब जहां इंटरेस्टमेंट पे प्रॉपर्टी है। पता चला आपका कोई दोस्त लंदन जा रहा है, अपनी सारी ज्वेलरी, सोने की प्लेट वगैरह आपके यहाँ रख दिया कि भाई आएंगे तो लेंगे। आजकल चोरियां बहुत बढ़ रही हैं। अब वो वापस आया, तब तक आप बेच वच के किनारे कहे कहाँ अब आप कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा तो था नहीं कि तुम ला के रख दो। तो बेसिकली आप यू आर डूइंग द ब्रीच ट्रस्ट। ये पढ़ाया जाएगा आपको सीएमपी और सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। एनीवे सर उसके लिए कोई टाइम लिमिट तो होती होगी ना? अरे भाई वो आप अपने क्रिमिनल लॉ टीचर से पूछिएगा, टाइम लिमिट नहीं होती है उसकी। कॉग्निजेंस 369 में कब तक किसी क्राइम का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। हम लोग 71 पे आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को देखते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी भी होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ये कहती है एग्जैक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, आपने किसी का सामान, अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड बिलोंगिंग टू द अनदर, तो ये मान लिया जाएगा
एक्चुअली कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, बेलमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, ठीक है। जैसे टेलर के हाथ जाते हैं तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उसको देते हैं कि भाई 3 दिन में बना के सूट वापस कर दोगे, तो वो स्पेसिफिक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आप बेलर होते हैं वो बेली होता है, तो वो टेलर तो बेली एज ए बेली के रूप में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मान लो कोई प्रॉपर्टी आपकी पा गया, ठीक है, तो ए पर्सन हु फाइंड्स द गुड बिलोंगिंग टू द अनदर एंड टेक्स हिम इनटू हिज कस्टडी, और अपनी कस्टडी में ले लेता है, ठीक है। वही टेलर है, किसी का सामने उसके दुकान के कपड़ा गिरा हुआ है, वो आदमी आगे बढ़ रहा है, कार से जा रहा था, उसका कपड़ा गिर गया, उसने उठा के अपने पास रख लिया, है? तो अब ऐसा नहीं है कि उसको सूट बना के किसी को बेच देगा, उसको रखे रहना है, इंतजार करना है। अब देखो